Today we will start again the matter in our surroundings. So we know that everything that we see, that we can feel, which have some space and have mass and volume is known as matter. You can see the very first example is in classroom the benches on which the students sit have some space, they have some mass and volume which are regarded as matter. According to Indian philosophers, the matter is made up of five primitive elements that are Panch Tattva: air, soil, fire, and one that is missing is sky and water. Okay, the thing that is missing here is sky and water. Every living and non living things are made up of these primitive elements: air, soil, fire, sky, and water. Okay, so next are what are the properties of these matter? We know that matter is composed of very small particles. If the small particles are known as atoms, and these atoms combines together to give a molecule, and which in turn give rise to the formation of matter. So everything in this universe is made up of atoms and molecules. Okay, so matter is itself made up of atom and molecules. These particles of matter have some properties, and the properties of these matter are: matter is always made up of particles. The particles of matter are very small in size, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं. और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. So there are few experiments on the basis of which we can say that these all properties of matter exist, and the properties of matter can be proved by a simple experiment in your daily life. Like say for example, we have a glass filled with water. हमने एक ग्लास लिया जिसके अंदर पानी डाल दिया. अभी अब उसके अंदर हमने शुगर ऐड की. शुगर ऐड करते गए वाटर लेवल राइज हो गया. एक स्टरर लिया और उसे स्टर करने लगे. स्टर मतलब मिलाने लग गए. ठीक है, स्टरर मतलब अगर आप चम्मच लेते हैं, कोई और चीज़ लेते हैं जिससे आप स्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन को. आफ्टर सम टाइम द शुगर गेट डिसॉल्व एंड वाटर लेवल comes back to original marked line. That means matter is made up of very small teeny particles. Okay, that's why sugar adjusts in that space which is available in the water. This phenomena of intermixing of two type of matter is also known as diffusion. वैसे diffusion का मेन जो डेफिनेशन है वो गैसेस के लिए होता है. अभी गैसेस डिफ्यूज करते हैं. जैसे अगर आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर गैस लीक कर रही है सिलेंडर से, तो होता क्या है, गैस के सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा रहता है और गैस के सिलेंडर से बाहर प्रेशर कम रहता है. तो उसकी वजह से गैसेस क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन जो है जिस टाइम हम स्टर करते हैं इन वाटर. द अबोव एक्सपेरिमेंट जो भी हमने करा, दैट इज शोन अस दैट ऑल द matter is made up of very small and teeny particles. Okay, experiment number 2 is take a beaker filled with water. हमने अगेन बीकर लिया, हमने उसके अंदर सीड ऑफ पल्सेस डाल दिए. हमें पता चला कि सीड्स मूव कर रहे हैं सरफेस पे जिगजैग मोशन. जो जिगजैग मोशन में मूवमेंट होती है उसे ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. अभी अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर के कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं. ओके,
due to which seed left undisturbed kept on moving on the surface of water. That means they possesses kinetic energy. ऐसे भी भाई अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मैटर को देखते हो, मैटर ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग. अगर आप बात करते हो गैसेस की, आपको क्यों लगता है कि गैसेस बाहर क्यों आ जाती हैं? आपको जो फूड की फ्रेग्रेंसेस है, फूड का जो स्मेल है, जो स्वीट स्मेलिंग है फूड, उसकी स्मेल या फिर उसका जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है वो आपके पास क्यों पहुंचता है? बिकॉज द मैटर कैन continuously moving, matter can move from one place to other. Okay, that means that they have a kinetic energy and which increase on increasing the temperature. Okay, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसके अंदर वाटर के अंदर आपने कोई चीज़ डाल रखी है, वो पहले मूव कर रही थी, वो बढ़ाने से और ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन बढ़नी शुरू हो जाती है. ओके, नाउ सीड अंडरगो ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है zigzag मोशन. द अबोव एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3. We can easily move our hand in a bucket filled with water. But if we try to do the same with solid object, अगर हमारे पास पानी है, पानी में हम मूव कर सकते हैं, एयर में हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट. हमने क्या करा, पानी डाल के उसे फ्रीज कर दिया और उसके अंदर कोई बॉडी डाली, तो उस बॉडी को आप मूव कर सकते हो आइस के अंदर? नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. ठीक है, जैसे जैसे आपका सॉलिड जो सब्सटेंसेस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एयर सॉलिड होती तो आप मूव कर सकते अपने हैंड्स को? नो. इसीलिए जो मूवमेंट है वो पार्टिकल्स के, ऐसे पर्टिकुलर पार्टिकल्स में हो सकती है, चाहे तो वो लिक्विड है चाहे गैसियस है. सो इसी को हम प्रूव करके बता सकते हैं दैट that's why the particles of matter has force of attractions between them. Okay, next is classification of matter into different states. Matters की भी, matter की 3 स्टेट होती हैं, that is solid, liquid and gas. इसके अलावा 2 स्टेट्स और होती है, that is plasma and Bose-Einstein condensate, which we will discuss in further classes. So first we will discuss about solid, liquid and gas. So what is solid? Solid की कुछ भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि that is a solid. So solid की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उनका डेफिनेट शेप होता है. डेफिनेट शेप क्यों होता है अभी? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. सॉलिड की कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है. सॉलिड स्टेट की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, और सॉलिड सब्सटेंस कभी भी फ्लो नहीं करते, और वॉल्यूम फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और डेफिनेट शेप होता है. अब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि जो नाइबरिंग सब्सटेंसेस है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है. द सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल. अब सॉलिड सब्सटेंस अपने शेप को बना के रखते हैं जिस टाइम हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं. ये भी अपने शेप को चेंज नहीं करते, टूट जाते हैं. जिस टाइम हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं, दे कैन ब्रेक डाउन बट दे कैन नॉट चेंज देयर शेप. दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या नहीं करते, डिफ्यूज भी नहीं करते. ओके, सो नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है. और वो शेप किसका लेते हैं भी, कंटेनर का लेते हैं. अब डेफिनेट वॉल्यूम होती है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. अब हायर लेवल से लोअर लेवल तक ये फ्लो कर सकते हैं. एक लिक्विड कंप्रेसिबल होता है ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस बिटवीन. कंप्रेसिबल का मतलब ये नहीं है कि भी वो लिक्विड बाहर आ जाता है, लेकिन कंप्रेस कर सकते हो आप उसे ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द नाइबरिंग मॉलिक्यूल देन सॉलिड. बट ये गैस से कम कंप्रेसिबल होता है, इनकी डेंसिटी कम होती है. एक लिक्विड डिफ्यूज कर सकता है अदर लिक्विड में बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर इन लिक्विड बट स्लोअर इन कंपैरिजन टू
गैस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस कर सकता है भाई, सॉलिड नहीं कर सकता, लेकिन गैस से ज़्यादा इजीली ये डिफ्यूज नहीं कर सकता, गैसेस बहुत इजीली डिफ्यूज करती है। नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में भी ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एक कंटेनर का शेप लेते हैं और वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका वॉल्यूम भी जो है वो डेफिनेट नहीं रहता है। दे आर नॉट रिजिड। गैसियस स्टेट सब्सटेंसेस जो हैं वो रिजिड नहीं रहते हैं। रिजिड का मतलब क्या है भाई, जैसे हमने बोला था सॉलिड्स आर रिजिड, मीन्स सॉलिड आर कैन नॉट चेंज देयर शेप ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बट गैसेस कैन, दे कैन इजिली कंप्रेसिबल। अब इनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि गैसेस को कंप्रेस करना बहुत ईजिली है, और ये प्रेशर अप्लाई करने पे कंप्रेस हो जाती हैं। दे कैन ईजिली डिफ्यूज। अब भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये ईजिली डिफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव वेरी फास्टली, ड्यू टू विच स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लार्ज। दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शन है सब में गैसियस सब्सटेंसेस फ्लो कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है, लिक्विड से गैस चेंज करना है, कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स क्या कर देते हैं अभी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं विद ग्रेटर स्पीड, या फिर पार्टिकल्स की मोशन जो थी वो इंक्रीज हो जाती है, पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ हीट से जो एनर्जी प्रोवाइड करी अभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक कर देती है बिटवीन द पार्टिकल। एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ के क्या करने शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रीली। एक फेज रीच करता है जहां पे सर्टेन टेम्परेचर पे, जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, दिस टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ पूछी जाती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जिस टाइम आपका कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होकर एक लिक्विड में चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर एज ए पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज यू कैन सी मेल्टिंग ऑफ आइस। सॉलिड वाटर इज नोन एज आइस। हीट एप्लीकेशन पे आइस मेल्ट हो जाती है, वाटर में भी। दिस इज नोन एज effect of temperature on state of matter. Now particles of water, अब होता क्यों ऐसा, particles of water possesses greater kinetic energy 0 degree Celsius. Is this possible? No. On application of more heat, the particles of water can gain more kinetic energy. At specific temperature, the particles acquire enough energy. इतनी एनर्जी हो जाती है पार्टिकल्स की वो बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को भी तोड़ देते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। देयर आर सम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर, ओके, एंड द स्टार्ट कन्वर्टिंग टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो भी, एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, आप किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हो तो लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो वेपर जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर वेपर प्रेशर हो जाता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या, लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। You can see here liquid when heated that can change into vapor। जो हमें भी अब भाप दिखती है उसे आप वेपर्स बोलते हो on boiling। नेक्स्ट इज latent heat of fusion, that is important। latent का मतलब होता है अभी छिपा हुआ, छिपा हुआ मतलब that is hidden। during the melting of solid,
सॉलिड को मेल्ट करते हुए द टेम्परेचर रिमेन सेम, द हीट गेट यूज्ड फॉर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब भाई जिस टाइम हमने हीट करा तो बहुत ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर सेम रहा। अब टेम्परेचर हम तो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो टेम्परेचर यूज हुआ किस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ब्रेक करने में, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम हीट कर रहे थे। द हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड ice without any rise in temperature. This heat is known as the hidden heat. Okay, that is known as latent heat of fusion. The heat energy is being absorbed by the solid without any rise in temperature. This heat is regarded as hidden in the content of container. Okay, that is known as latent heat. अब content of container भी आपने देखा होगा, कंटेनर हीट हो जाता है, इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ आइस टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इट कैन बी फर्दर डिफाइंड एज, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point. This is important. At its melting point, the amount of energy required for convert of 1 kilogram of solid into liquid, that is known as latent heat of fusion. Next is latent heat of vaporization. अब heat of vaporization मतलब भाई सेम चीज है। Particle of water vapor at 100 degree Celsius have more energy than liquid water at same temperature. Why? Because वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। कई बार भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को छूते हैं और अगर उसमें से भाप निकल रहे, वेपर्स निकल रहे हैं, या फिर वो हीट है, वेपर्स से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू हीट। वाई? बिकॉज उनके अंदर लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट का मतलब क्या है भाई, पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं उनकी एनर्जी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होती है भाई। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर पे उन्होंने एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, हाँ, ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।